السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسری۔ آج دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی اور ملتان میں بھی اور پورے جنوبی پنجاب میں جو عالمی یوم مزدور ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ عالمی یوم مزدور کے سلسلے میں آج دن بھر تقریبات بھی ہونی ہیں، ریلیز بھی ہونی ہیں اور آج عام تعطیل کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ عالمی یوم مزدور 1886 میں شکاگو کے جو مزدور تھے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی اس حوالے سے یہ روایت قائم ہے کہ جب بھی یکم مئی کا دن ہوتا ہے تو اس دن پورے ملک میں عام تعطیل ہوتی ہے اور اس بات کا عزم کیا جاتا ہے کہ مزدوروں کو جو ان کے رائٹس ہیں وہ دیے جائیں گے۔ یہ عزم ہر سال کیا جاتا ہے اور جب سے ملک پاکستان وجود میں آیا ہے 75 سالوں سے جو ورکنگ کلاس ہے ان کے رائٹس کی بات تو کی جا رہی ہے، لیکن اس ورکنگ کلاس کو کوئی رائٹس دینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں ہیں، اگر ان کی بات کریں تو پاکستان پیپل پارٹی مزدور کلاس کے لیے مسلسل آواز اٹھاتی رہی ہے ماضی میں، لیکن ابھی جو صورتحال ہے اس سے عام آدمی نالان دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی مزدوروں کے حقوق کی بات کی، لیکن جب ان کا دور اقتدار تھا تو اس دور اقتدار میں بھی مزدور کو رائٹس نہیں مل سکے۔ پاکستان مسلم لیگ نون بھی بار بار عام آدمی کی جو اس حوالے سے ان کی انکم ہے ان میں اضافے کی بات کرتی رہی ہے، کاروبار کی بات کرتی رہی ہے، لیکن آج جو حالات ہیں اس میں یقیناً عام آدمی متاثر ہے۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ جو آج ہمارا مزدور ہے وہ کن حالات سے دوچار ہے، ہماری جو حکومت ہے وہ کیا ان کو ان کے حقوق دینے کو تیار ہے یا وہ تیار نہیں ہے، ہمارے ہاں جو مزدور جس ماحول میں کام کر رہا ہے کیا وہ کام کرنے کے لیے سازگار ہے یا نہیں، ہمارے ہاں جو مزدور کے لیے جو لاز بنائے گئے ہیں ان پر کیا عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس ساری صورتحال پر آج ہم عام آدمی سے عام مزدور سے گفتگو کریں گے۔ ہم اس وقت پہنچے ہیں ملتان کے حرم گیٹ چوک پر، جہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں ویسے تو سرکاری چھٹی ہے، لیکن کیونکہ مزدور ہے تو مزدور نے جب تک وہ کام کرے گا تب بھی اس کے گھر کا سرکل چل پائے گا۔ تو آج عالمی یوم مزدور کے موقع پر بھی جو عام آدمی ہے وہ کام کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو ہم ذرا یہاں سے شروع ہوتے ہیں لوگوں سے کہ وہ بات کیا کہتے ہیں آج کے دن کے۔ کیا حال ہے جی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عالمی یوم مزدور ہے تو آج بھی عام آدمی تو کام کر رہا ہے، چاہے وہ رکشہ چلا ہے، مزدوری کر رہا ہے، دکان کھول کے بیٹھا ہے، اسٹال لگا کے بیٹھا ہے، آج بھی وہ 12 گھنٹے کام کرے گا۔ تو عالمی یوم مزدور تو منایا جاتا ہے، لیکن مزدور کے جو ہمارے ہاں حقوق ہیں کیا وہ بھی مل رہے ہیں؟ نہیں سر، حقوق تو مزدور کے کیا مل رہے ہیں، وہ تو اچھے بھلے بندے کو حقوق نہیں مل رہے۔ تو بات یہ ہے مزدور جو ہے نا ہمیں شروع سے پستا آ رہا ہے، اگر مزدور یہاں کے لیول پہ کام کرتا ہوا فوت ہو جائے نا تو اس کو جو ہے نا بندہ نہیں سمجھتے۔ اور کل اگلے ہفتے یہاں فوت ہوا ہے بندہ، وہ 40 سال سے یہاں کام کر رہا تھا مزدور، تو بس اس کو صرف اس کے گھر تک پہنچایا گیا، نہ اس کو کوئی وہ جیسے سرکاری لیول پہ ہے یا اس کو ریٹائرمنٹ دی جائے یا اس کو کچھ پینشن دیا جائے، اس کو کوئی ایسا حساب مزدور کا ہو۔ یہ 1000-1200 میں گزارا ہو ہی نہیں رہا، مہنگائی اتنی ہے، مزدور آدمی بالکل پھنس گیا سر جی۔ اور حتیٰ کہ کافی مزدور ایسے ہیں جو بیچارے وہ بھیک مانگنے میں مجبور ہو گئے ہیں۔ 1200 مزدور کی بات کریں جو $3 میکسیمم بنتے ہیں اور $3 میں 10 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے، تو یہ ہمارے یہاں صورتحال ہے۔ تو اندازہ لگا لیں کہ ہمارا عام آدمی کتنے مشکلات میں کام کرتا ہے۔ اچھا آپ بتائیے گا، ہمارے جو رکشہ ڈرائیور ہیں وہ بھی دن رات کام کرتے ہیں، پہلے وہ 8 گھنٹے رکشہ چلاتے تھے، اب وہ 12 سے 13 گھنٹے رکشہ چلاتے ہیں، 16 گھنٹے چلا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر عام آدمی عام مزدور تو ہے وہ تو پس چکا ہے۔ تو آج کا دن جو منایا جا رہا ہے کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں ان کو خیال آئے گا کہ عام آدمی کن حالات سے دوچار ہے؟ السلام علیکم سر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مزدور آدمی کہاں ہے، مزدور تو سمجھ لیں مر گیا ہے بالکل ہی۔ وہ 12 گھنٹے کے اب تو 16 گھنٹے ڈپٹی کر کے بھی اس کی پوری نہیں پڑتی، کیونکہ 300 روپے کلو گیس ہے، کوئی خوف نہیں ہے اس حکومت کا۔ یہ لڑتے جھگڑتے رہیں گے، ہم مزدور ویسے مرتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے ہمارا اینڈ جو ہے نا وہ کسی کو کوئی پتہ نہیں، کسی کو کوئی خیال بھی نہیں ہے۔ بلکہ مزدور 16 گھنٹے ڈپٹی کرنے کے بعد بھی اس کا یہ کنڈیشن ہے، ایک ٹائم ہے، دوسرے ٹائم نہیں ہے اس کے پاس کھانے کے لیے، نہ بجلی کا بل اتنے آ جائیں گے، کھانے پینے اتنی گیس جینا نہیں دیتی۔ آج کے دور میں 2 کلو گیس جلائے یا گھر کا کھانا پینا لے کے جائے، میرے خیال میں یہ ہے کہ ایک دفعہ بھی ایک مہمان کے لیے ہم مہمان نوازی نہیں کر سکتے۔ اتنی اثرات، اتنی مہنگائی، محنت کرنے کے باوجود دن رات محنت کر لو جی۔ اب آپ بجلی کا بل آیا تو سمجھ لیں ہم اگلے مہینے یہ سوچتے ہیں یار اگلے مہینے یہ بھریں گے، اس سے اگلے مہینے یہ کریں گے، اپنے جو خواہشات ہیں اس سے ہم دفن کر دیے بالکل ہی۔ کچھ کھانے کے لیے ہم پھل فروٹ لے کے نہیں جاتے، تو مہنگائی ہے، آٹا مہنگا، چینی مہنگی حال ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ لوگ کام نہیں کر رہے، لوگ انہوں نے ڈبل کام کرنا شروع کر دیا، لیکن جو ویجز ملتے ہیں ان کو جو اجرت ملتی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، وہ اس میں بھی اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔ تو اندازہ لگا لیں ہمارا عام آدمی کتنی محنت کرے۔
24 घंटे ना 16 घंटे तो तैयार हो गया मेहनत करने को, उसके बावजूद भी अपना सर्कल नहीं चला रहा, तो कौन इसका जिम्मेदार है? अच्छा आप बताइएगा जी, जो सारी सूरत हाल है, रक्षा ड्राइवर्स पहले रक्षा यूनियंस काफ़ी मजबूत हुआ करती थी, वो आवाज़ उठाती थी तो उनकी मुतालबात भी माने जाते थे। आज तो आलमी यौम मजदूर है, तो क्या रक्षा यूनियन या बाकी जो ट्रेडर यूनियन है, लेबर यूनियंस हैं, क्या उनकी आवाज़ में कोई असर है कि हुकूमत उनकी बात सुनती है या हुकूमत टस से मस नहीं होती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि पहले बात सुनते थे, हर चीज़ होती थी। अब तो यूनियन या मजदूर को हट के किसी भी इंसान की, पाकिस्तानी किसी शहरी की कोई बात नहीं सुनी जाती, कोई आवाज़ नहीं सुनी जाती। सियासतदान बैठे हैं सिर्फ नारों की हद तक, सिर्फ तस्वीरें खिंचाने की हद तक, या आपस में एक दूसरे को चोर कहने की हद तक। वो आवाम का ना सोचते हैं, ना आवाम के बारे में कुछ महसूस करते हैं। आज मजदूर डे है, पूरी दुनिया में मजदूरों की बात होती है, मजदूरों के नाम पे नारे लगते हैं, मजदूरों के नाम पे फंड लिए जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में अब ये हुक्मरान लेके आते हैं। मुझे बताया, अब मजदूर को कहाँ मिलता है? क्या मिलता है मजदूर को? सिर्फ एक भूख, और मजदूरी करके उसको पूरी उजरत नहीं मिलती। शाम को वो जब घर जाता है तो गैस डलवा के, मोबाइल डलवा के, पैसे जेब में खाली करके घर जाता है, घर में लड़ाई रहती है। कितने से रक्षा चला रहे हैं? वो तकरीबन 12 साल हो गए। 12 साल से रक्षा चला रहे हैं। जो अब सूरत हाल है, इन 12 साल से आपने मेहनत की, मुसलसल स्ट्रगल की, मेहनत मजदूरी की, तो आप में कुछ तरक्की हुई? आपने कुछ सोचा कि मेरे हालात बेहतर हुए? जो घर में जमा होता है वो भी बेच के खा गए। इस हुकूमत ने जो आई है ना, हुकूमत आई हुई है, जो महंगाई का जो दौर चल रहा है ना, इसमें जो अपने घर की एशिया है, कभी बिजली का बिल भरना है, कभी गैस का बिल भरना है। बच्चों को प्रॉपर तालीम दे पा रहे हैं? तालीम, मैं कह रहा हूँ रोटी पूरी नहीं होती, तालीम उनको क्या देनी है? नारे लगाते हैं। हुक्मरान जो है ना, ये फेल हो चुके हैं, नाकाम हो गए हैं। क्या इंतजामिया जो बैठी है मुल्तान में या जिले में, किसी जिले में भी इंतजामिया भी नाकाम है? क्या वो निकल के बाहर नहीं दे सकती? अब गवर्नमेंट ने रेट निकाला हुआ है LPG का 228 रुपए। अब यहाँ पे हर जगह बोर्ड लगे देखे 200, 310, 320, 300 रुपए। क्या उनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं है? एक सारी सी मिसाल है, 12 साल से ये रक्षा चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई अपने हालात बेहतर नहीं कर पाए। मेहनत उन्होंने बढ़ा दी, अब रिक्शा ज्यादा चलाते हैं। जाहिर है 12 घंटे 14 घंटे रिक्शा चलाते हैं। 14 घंटे चलाने के बावजूद अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, प्रॉपर खुराक नहीं दे सकते, और उसके अलावा अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी करना मुश्किल है। ये सिर्फ ये एक शख्स नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके सबके हालात ऐसे ही हैं। तो अंदाज़ा लगा लें कि मेहनत करने के बावजूद भी क्या मिल पा रहा है, तो साहिब इक़्तिदारों को सोचना चाहिए। आप हमेशा हम देखते हैं कि आप रक्षा यूनियन के हवाले से बात करते दिखाई देते हैं, तो आजकल तो हमारा जो वर्किंग क्लास है वो पिसती जा रही है। असल में बात यह है ना कि हुकूमत जो है ना, बिल्कुल आज से मेरे 45 साल हो गए मुझे रक्षा चलाते को। मैंने ऐसे दौर ये जो 4-5 साल 3-4 साल जो गुजरे हैं, ऐसा दौर मैंने कभी नहीं देखा था। पहले भी महंगाई भी होती, गैस भी महंगा था, मगर रोज़गार होता था, चीज़ें सस्ती होती थी। ये 4 सालों में तो इतना पीस के रख दिया है कि ये गैस हमारा 60-70 रुपये फी किलो मिलता था। जब मेरी दुकान थी शुरू तो उसमें 28 रुपये किलो गैस था, और मैं बहुत ही अच्छी रोजी। मैंने बच्चों को मैंने पढ़ाया भी है, मैंने बच्चों को काम भी सिखाया है, मैंने बच्चों की शादी भी करी है। ये मजदूर नहीं कर सकता। मजदूर ये जो 4 साल ये गुजरे हैं, ये इनकी अपनी कश में वो कहता वो चोर है, वो कहता चोर है। इन्होंने मुल्क को बदनाम कर दिया है। जब कोई शख्स बदनाम हो जाता है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ये दोनों हुकूमतों ने आके हुकूमत मुल्क को बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया है। चोर कोई भी नहीं, मगर चोर नहीं है, चोर खुद चोर है, मगर चोर भी नहीं है, मगर बस एक बदनाम करने के लिए मुल्क को मसाइल, ये मसाइल हैं। लेकिन एक और चीज़ जो है वो सबसे अहम होनी चाहिए थी। हमारा 60% नौजवान है, कोई स्किल नहीं सिखाई गई, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि वो खुद से काम कर सके, हम कोई प्रोडक्ट बना नहीं रहे, तो ये तो मसाइल होंगे। अच्छा आप, हमें जो है ना समझ नहीं आता कि हम वोट किसको दें। हमें ये नहीं समझ में आता, जिसको देखते हैं वही चोर है, क्योंकि किसी ने जो है ना गरीब का सोचा ही नहीं है। हमें ये नहीं समझ में आता हम वोट दें किसको। आज मजदूर की हालत क्या है? मजदूर की हालत ये है कि भाईजान वो 3 टाइम खाने वाला, 1 टाइम की रोटी पूरी करना उसके लिए मुश्किल है। और आवाम को निकालने वाले हमेशा लीडर होते हैं। जब भी कोई इनकलाब आता है हमेशा कोई ना कोई उनके पीछे लीडर खड़ा होता है। इतनी महंगाई हो गई है, इतनी बेरोजगारी हो गई है, हम जिनको वोट देते हैं वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आवाम को निकालते बाहर? अवामी नुमाइंदे हैं, वो तो अपनी सुकून की लाइफ गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत कायदन रहमतुल्लाह के छोटा सा कौल याद है, जब वो मुस्लिम अपना अंग्रेज़ों के हुकूमत में दावत के लिए गए थे, उस वक्त का जो यार्ड जो भी उसका नाम है उसने बुलवाया था। तो उस वक्त कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को एक बंदे ने कहा ये सियासतदान है, तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह गुस्से में आ गए, कह रहे मुझे सियासतदान ना बोलो, मैं अपनी आवाम का, अपनी कौम का लीडर, मुझे लीडर बोलो। मैं कहता हूँ हमारे हुक्मरान हमें आके कहते हैं हम लीडर हैं। कहाँ की लीडर हो भाई तुम अपनी कुर्सी के, अपने घर के, अपनी बीवी बच्चों के तो लीडर हो सकते हो, हमारे लीडर नहीं हो।
میں عمران خان آ گیا, نواز شریف آ گیا, زرداری آ گیا, بے نظیر کوئی بھی برانڈ آ گیا, کسی بھی قسم کی سیاست حکومت, وہ سب اپنے نوٹ اپنی سیٹس چمکانے کے لیے آئی ہے. آپ سچ بتائیں, آپ خود ملازم کرتے ہیں, آپ خود یہ اب ملازمت آپ خدمت کر رہے ہیں, آپ دن رات یہ کر رہے ہیں, آپ کتنا گھر لے کے جا رہے ہیں, آپ اپنے گھر کو حالت خراب. ہم مزدور ہیں, میں 15,000 کا طالب, 15,000 میں تنخواہ ہے, میں 5 سال سے ایک ہی جگہ پہ 15,000 مہینہ کما رہا ہوں. 3 میرے بچے ہیں, 150 روپے کلو آٹا, 140 روپے کلو چینی اور 650 روپے کلو گھی ہے. بتائیں میں اگر 1 کلو گھی لیتا ہوں, 1 کلو چینی لیتا ہوں, 1 کلو چینی تو 5 کلو آٹا لیتا ہوں, تو میرے تو 5,000 وہیں پورے ہو گئے. میں 10,000 میں بجلی کا بل کیسے بھروں؟ آج کا بجلی کا بل کم از کم اگر کسی کا 5,000 ہے, آج 20,000 بجلی کا بل آ رہا ہے. جس بندے کا 20,000 اس کا اللہ جانتا ہے. میرے گھر میں صرف ایک سولر سسٹم پلیٹ لگی ہوئی ہے, ایک 12 واٹ کا کولر لگا ہوا ہے, اور میرے گھر کے اندر سرکاری نلکا ہے, اور میرا بل اس پچھلے مہینے 1,44,000 کا آیا ہے. اب بتاؤ میں 15,000 کمانے والا 1,44,000 کہاں سے بھرے گا؟ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, بتائیں یہ رکشہ یونین کھڑے سارے, ان میں مزدور طبقہ بھی کھڑے, ان میں وہ لوگ بھی جو صبح کا ناشتہ کر کے نہیں آئے, وہ لوگ بھی کھڑے جنہوں نے صبح کا ناشتہ تو کیا, ان کو یہ نہیں پتہ دوپہر کا کھانا ملے گا نہیں ملے گا. وہ لوگ بھی کھڑے جنہوں نے دوپہر کا کھانا تو کھانا ہوگا یا کھا لیا ہوگا, ان کو یہ نہیں پتہ میں شام کو اپنے بیٹے کے لیے کھانا لے کے جاؤں گا نہیں لے کے جاؤں گا. لیکن حالات یہ ہے حاجی صاحب, میں جتنا میں کسی بھی حکمران کو کہہ دوں کہ تو غلط یہ نہیں, غلط ہم بھی ہیں. ہم ایک پلیٹ چاول ایک بوتل کے اوپر, پیپسی کے اوپر یا کسی بھی بوتل پہ بکنے والے ہیں. ہمارا آج لیڈر آ کے ہمیں کہے گا میں تیرا بھائی ہوں, مجھے ووٹ دے, جو غلطی ہوگی سو ہوگی, آئندہ نہیں ہوگی. ہم اپنی اس قوم کے بندے کو نہیں ووٹ بھی دے دیں, وہ پھر وہ اگلے سال الیکشن جیتنے کے بعد گدھے کے سنگ کی طرح غائب ہو جاتا ہے. اصلیت غلطی ہم لوگوں کی. اگر ہم عوام سمجھ لیں گے نا تو سب کچھ سیٹ ہو جائے گا. اب نہیں سمجھیں گے کچھ بھی نہیں سیٹ ہوگا. وہ بڑے بزرگ کہتے ہیں نا حضرت جی, یہ کلام پاک میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جب تک اس قوم اپنی حالت خود ہی نہیں سدھارتی. یقیناً آج کے دن جو لوگ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں, عالمی مزدور یوم مزدور کے حوالے سے, لوگ اب اپنے رائٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور جو ہمارے معاشرے میں جو چیزیں ہیں نشاندہی بھی کر رہے ہیں کہ اس طرح سے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. لیکن اس بات سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی کہ آج بھی عالمی یوم مزدور کے موقع پر جو عام آدمی ہے, جو عام مزدور ہے, جو عام ورکنگ کلاس ہے, وہ آج بھی کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. اور آج بھی وہ آج کے دن بھی وہ اس کوشش میں ہے کہ وہ آج اپنے گھر کا جو راشن ہے وہ پورا کر سکے, اور اپنے بچوں کو آج جو کھانا ہے وہ کھلا سکے. پورے ملک میں تو آج چھٹی منائی جا رہی ہے, لیکن عام آدمی آج بھی سڑک پر اپنا ٹھیلا لگا کے بیٹھا ہے, اپنا رکشے سے مزدوری کر رہا ہے, کوئی کنسٹرکشن کمپنیز میں جگہوں پہ کام کر رہے ہیں, تو آج بھی عام آدمی کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. اور جو صاحب اقتدار ہیں وہ آج بھی اس بات سے آنکھیں چرا کے بیٹھے ہیں کہ ان کی جو عوام ہے, جو اس ملک کی 80% آبادی ہے, وہ خطۂ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہی ہے, اور وہ اس بات سے بے فکر ہیں. تو ہم اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے. پریس کلب کے باہر بھی کافی سارے یونینز وہاں موجود ہیں, وہاں بھی جائیں گے اور ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ آج عالمی یوم مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج یوم مزدور ہے, پوری دنیا میں مزدوروں کا عالمی دن بنایا جا رہا ہے, تو ملتان میں بھی اس حوالے سے مختلف مقامات پر ریلیز کا سلسلہ جاری ہے. ہم اس وقت پریس کلب ملتان کے باہر موجود ہیں. مختلف جماعتوں کی جانب سے مزدوروں کے حق میں آج ریلیز کا سلسلہ جاری ہے. رکشہ یونینز بھی آئے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ عوامی ورکر کی جانب سے بھی یہاں پر ریلی نکالی گئی, اور مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے جو ہمارے آئین میں چیزیں درج ہیں اس پر عمل درآمد کرنے کے مطالبات کیے گئے ہیں. ہم یہاں پر ذرا بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں مزدور کو کن کن مسائل کا سامنا ہے, ہمارے ہاں جو لیبر لاز موجود ہیں ان پر کتنا عمل ہوتا ہے, ہمارے ہاں جو ورکر کلاس ہے ان کی جاب سیکورٹی کے لیے کیا اقدامات ہیں, ان کی ہیلتھ کے لیے کیا اقدامات ہیں. یہ سارے معاملات ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر لوگ موجود ہیں وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک جی. آج یوم مزدور پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے, اور ملتان میں بھی یہاں پر پریس کلب کے باہر موجود ہیں. تو ہمارے ہاں جو لیبر لاز موجود ہیں ان پر زیادہ تر تو عمل نہیں کیا جاتا. ہمارے ہاں ڈیلی ویجز پہ لوگ کام کرتے ہیں, ان کی کوئی جاب سیکورٹی نہیں ہوتی. تو اس طرح کے مسائل ہیں. تو آپ لوگوں کا آج یہاں پر جو آئے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا مطالبات کیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو یوم مئی کے حوالے سے جہاں اکٹھے ہوئے ہیں, اور بیسک مقصد تو ہمارا شہدہ شکاگو کو ترک سلام پیش کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو لیبر طبقہ ہے, مزدوروں کی, کسانوں کی اور درمیانے طبقے کی جو ہے حالت بہت بری ہے. لیبر لاز پر عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں جو کم از کم جو ویجز ہے اس پہ کوئی ادارہ بھی عمل نہیں کر رہا. یہ قانون ہے, پاکستان کی حکومت نے قانون بنا دیا ہے کہ کم از کم تنخواہ جو ہے وہ 25,000 ہوگی, لیکن وہ کوئی ادارہ دینے کے لیے تیار نہیں. 10,000 کا بھی اعلان کیا گیا, اس سے بھی زیادہ کر دیا ہے, 7,000 بڑھا دیا. لیکن پھر بھی ایک تو یہ نہیں ہو رہا. دوسرا یہ ہے کہ جو ٹریڈ یونین کے قانون ہیں
जो अंजुमन साजी के कानून है, जो मजदूरों को इकट्ठा करने के कानून है, वो भी उसमें भी पाबंदी लगा दी गई है। इदारों से जो है ठेकेदारी निज़ाम के तहत रेगुलर लेबर जो है वो भर्ती नहीं होती, लोगों को सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, तिब्बी सहूलतें नहीं मिलती, और फिर महंगाई का जो तूफान है। तो हमारे यहाँ तो इदारे जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर मौजूद है वो तो सोशल सिक्योरिटी में जाना पसंद भी नहीं करता, वो तो अपने मुलाजमीन के वो जो सोशल सिक्योरिटी में रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराते। बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि ठेकेदारी निज़ाम है ना मेरे भाई, ठेकेदारी निज़ाम के तहत लेबर आती है जो रेगुलर लेबर नहीं होती, जो उनके पे रोल पे रजिस्टर्ड नहीं होती, इसलिए सोशल सिक्योरिटी में उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती ना। जो लेबर सोशल सिक्योरिटी में वो जाएगी जो उनके पे रोल पे रजिस्टर्ड होगी, जो उनके ट्रेड यूनियन में रजिस्टर्ड होगी। तो हमारा ये मुतालबा है कि ठेकेदारी निज़ाम को ख़त्म किया जाए और मिलों के अंदर, कारखानों के अंदर, सनती इदारों के अंदर जो है वो ट्रेड यूनियन पे आज पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ, ताकि यूनियन को और ताकि मजदूरों को उनके हकूक़ मिल सके। हमारे यहाँ वैसे जमहूरियत है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो ट्रेड यूनियंस हैं वो अदालतों में उस तरह से काम नहीं कर पाती। महंगाई को तो सारी जान छुड़वाओ, ये महंगाई को अजाब बढ़ के सारी ते नाज़िल था पे ये हुकूमत जड़ी इन्हों बेड़ा गर्क करे। पिछली हुकूमत अजाब पर पड़ा गई तबाह तो इन्होंने कितने साल है, इन्हों को सारी जान छोड़ो, अल्लाह ताला इन्हों बेड़ा गर्क करे सी, तबाह करे सी, इन्होंने मार दिते सकू, बिल्कुल मारते आटे को मारते 60 रुपए किलो ही है, उन्हें 60 रुपए गिनते पे। या अल्लाह इन्होंने बेड़ा गर्क कर, इन्होंने मुल्क को तबाह सही पीपल पार्टी जाते हुण कोई नहीं वोट रखू ना नू लिखू नहीं नकू हुण PTI को वोट ना इमरान को रेसू। इस वजह से आम लोग भी मौजूद हैं जो कि आ गया, उन्होंने अब आम यकीन महंगाई से तो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो बुढ़ साहब आप बताइएगा, जो इस वक्त सरकारी इदारों की हालत है, ऐपका मौजूद है, वो मुलाजमीन के वेजेस के हवाले से भी बात करती है, लेकिन सरकार कहती है कि अब तो उसके बाद पैसे नहीं, अब तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर को हम ज़्यादा सहूलत देने को तैयार नहीं है, IMF की पाबंदी है। तो इन हालात में जो आम मजदूर है, अब तो 80% हमारा जो मुल्क है वो आम मजदूर भी हैं, तो फिर वो किस तरह से इन हालात में सर्वाइव करेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। दोस्तों साथियों, मैं सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का मशकूर हूँ कि आज इस मजदूर डे के हवाले से उनका साथ देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, उनके दुख के दर्द की आवाज़ बने हैं। तो मैं बीइंग जनरल सेक्रेटरी ऐपका मुल्तान डिवीजन कासिम भुट्टा, मैं ये हमारे तमाम मजदूर तबका जो खड़े हैं, इनका किसी भी सियासी पार्टी से पहली बात तो कह रहा हूँ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनका ताल्लुक अपनी रोज़ी और रोटी से, अपने कायदा कानून से है, अपनी रोज़गार से मुतल्लिक है। आज के इस अहम दिन के हवाले से मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको, आप तमाम दोस्तों को, ये मेरे दोस्त जो हैं ये एहतजाज करने के लिए यहाँ नहीं आए, ये अपनी आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँचाना चाहते हैं आप तमाम दोस्तों की तवस्सुत से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तवस्सुत से, प्रिंट मीडिया के तवस्सुत से, ताकि हुकूमत वक्त को ऐवान बाला को पता चल सके। ये मजदूर हमारे जो तालीमी लिहाज से भी नहीं बल्कि तामीरी लिहाज से हमारे, मैं समझता हूँ, मेरी नाक़िस अक़ल कहती है, ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। घरों से लेकर मार्केट तक, मार्केट से लेकर यहाँ प्रेस क्लब तक, जिस रोड पे आज हम खड़े हैं, इस रोड को बनाने में भी मजदूर का अहम किरदार है, और जहाँ स्कूल बनते हैं स्कूलों को बनाने में भी मजदूर का अहम किरदार है। हर शोबा ज़िंदगी में जहाँ भी चला जाए आप देखते होंगे हमारा ये मजदूर बहुत अहमियत रखता है। लेकिन हर शोबा ज़िंदगी में जो हुकूमत भी आती है, जब भी आती है, जिस वक्त भी आती है, वो इन मजदूरों के हकूक़ पे कदगन डालती है, इनके हकूक़ का कला कमा करती है। आज मैं हुकूमत और ऐवान बाला से कहने जा रहा हूँ कि खुदारा ये मजदूर आज जिस दिन के लिए आपने छुट्टी की हुई है, इन मजदूरों के तुफैल ये छुट्टी लेबर डे के लिए है, लेकिन मजदूरों के अलावा स्केल 1 से 22 तक के तमाम मुलाजमीन वो इस छुट्टी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ये इन मुलाजमीन के और ये लेबर वर्कर के मरून मिन्नत हैं कि चाहिए था मजदूर को सिर्फ छुट्टी मिलती, इनके लिए खसूसी अलाउंस का कोई ऐसा जिक्र किया जाता इन मजदूर डे के हवाले से, ताकि इन्हें पता चलता कि हमारी हुकूमतें, हमारा इस्लामी मुआशरा, हमारे ये इस्लामी मुआशरे के लोग मजदूर के लिए दुख रखते हैं, दर्द रखते हैं। तो आज मैं हुकूमत वक्त को ये भी एहसानमंद कहूँगा, मैं किसी लगी लपड़ी बात में नहीं जाऊँगा, क्योंकि पिछले दिनों ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का जो एजेंडा था, आप खूब जानते हैं, खालिद जवेद संघेड़ा मरकजी सदर ऐपका पाकिस्तान है, उन्होंने अपने इन मजदूरों के हवाले से एक अहम पेशरफ्त अपने उस सपासनामे में रखी, अपने उस एजेंडे में रखी कि मेरे मुल्क के, वतन के, अजीज़ के ये जो मुआशरे के शहरी हैं, ये मजदूर हैं, ये रोटी रोज़ी की तलाश में हैं, ये भूख से पिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, इनके वालिदैन किस्म पुरसी की ज़िंदगी गुजारते हैं, इनकी बच्चियाँ शादी के बंधन में नहीं बंधी जा सकती, इनके वालिदैन को दवाई नहीं मिलती। तो हमारी
इस चार्टर्ड ऑफ डिमांड पे अमल करते हुए हुकूमत वक्त ने, यह आपको पता होगा, 25,000 से बढ़ाकर 32,000 की। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने अभी भी ये एजेंडा कायम रखा हुआ है कि हमारा मजदूर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है तामीर में, तो इसके लिए बहुत सारी मराहत का ऐलान किया जाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ना सिर्फ इदारों में बल्कि वतन अजीज में चप्पा चप्पा में बसने वाले मुलाजिम की और अपने उस मजदूर की, चाहे वो रेडी बान है, चाहे वो रक्षा ड्राइवर है, चाहे वो मजदूरी करने वाला है, जिस शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला मजदूर है, इंशाअल्लाह सेक्रेटरी जनरल एपका पाकिस्तान मुल्तान होने के नाते मैं खालिद जवेद संघेड़ा साहब को मरकजी सेक्रेटरी जनरल एपका पाकिस्तान होने के नाते, मरकजी सदर एपका पाकिस्तान होने के नाते उनकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ। इस हवाले से जो मजदूर हैं उनके हवाले से जो राइट्स हैं वो मिलने चाहिए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। अच्छा, जो हमारे यहाँ जो लेबर मौजूद है, पहली बात है वो स्किलफुल नहीं होती। हमारे यहाँ हम कहते हैं कि 60% हमारे नौजवान इस आबादी में का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं होती। फिर बैरून मुल्क जो पाकिस्तान जाते हैं वो भी अनस्किल जाते हैं, वहाँ बहुत मुशक्कत में काम करते हैं। तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे नौजवानों को, हमारे जो मजदूर हैं उनको स्किल सिखाए। तो क्या इस पर कोई काम हो रहा है? देखिए, इसमें बुनियादी जो बात है ना वो ये है कि मज़दूर का बेटा जो है वो मज़दूर रहेगा। ये हमारे मुल्क में, हमारे निज़ाम में, हमारे समाज में जो एक सबसे बड़ा एक फेमस जो इशू बना हुआ है कि मज़दूर का बेटा कभी एग्जेक्टिव नहीं बन सकता। कोई लाखों में, करोड़ों में कोई एक लड़का कोई ऊपर आ गया, कोई कहीं उसको चांस मिल गया कोई। अदरवाइज़ जब आप मज़दूर को उसके हालात कार के मुताबिक उसको ज़िंदगी गुजारने का ढंग नहीं देंगे, उसको वो हकूक़ नहीं देंगे, तो वो स्किल कहाँ से पैदा होगी? वो ज़ाहिर है कि मज़दूर का बेटा फिर कोई मिस्त्री बनेगा, कोई दर्जी बनेगा, कोई रेडी चलाएगा, कोई रेडी बेचेगा, कोई फ्रूट बेचेगा। मसला यही है कि मज़दूर देखें, पाकिस्तान में उस वक़्त तक बड़ी क्लियर एक बात है आज कि पाकिस्तान के हालात उस वक़्त तक दुरुस्त नहीं हो सकते, पाकिस्तान अपनी डगर पे नहीं आ सकता जब पाकिस्तान का मेहनत का जब तक मुआशी तौर पर बेहतर सूरत हाल में नहीं होता। जब तक जो आम वर्किंग क्लास है वो मुस्तहकम नहीं होती तब तक ये सुधारेंगे। चाहे मुख्तसर बताइए कि जो सारी सूरत हाल है, जो आम आदमी के हालात हैं, जो आम वर्किंग क्लास, अब तो हर बंदा 12 से 15 घंटे काम कर रहा है, तो इसमें इजाफा होता जा रहा है। मैं रिक्शे वाले से बात करता हूँ, वो कहते हैं मैं रिक्शा ज़्यादा चलाना शुरू कर दिया है। आम आदमी 2-2 जॉब्स कर रहा है। तो इन हालात में फिर यौम मई का मनाना, मुतालबात पेश करना, तो क्या लगता है कि हुकूमत भी संजीदा है कि आम तबके को कुछ सहूलत मिल सके? हुकूमत तो संजीदा नहीं है, लेकिन बात है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो मज़दूर है वो पिसता जा रहा है। मज़दूर की तनख्वाह इन्होंने 32,000 का कहा है, वो 32,000 नहीं दी गई। ये बहुत बड़ा जुल्म है। हम मुतालबा करते हैं कि मज़दूर की तनख्वाह 1 तोला सोने के बराबर की जाए, महंगाई को फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए, मुलाजमीन के बच्चों को भर्ती किया जाए, गुर्बत बेरोजगारी को ख़त्म किया जाए। हमारी यही मुतालबात है। हुकूमत बात आ रहे हैं, हमारे साथ नौजवान भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं। राहुल, आप बताइएगा, हम देखते हैं कि आप लोग हर जो भी आम लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, ख़वातीन राइट्स के हवाले से बात होती है, बाकी ह्यूमन राइट्स के, तो आप लोग सामने आते हैं और आवाज़ उठाते हैं। नौजवानों को काफ़ी अहम रोल है। आप नौजवानों की शक्ल में देख रहे हैं, क्योंकि नौजवान आजकल बेरोज़गारी का शिकार हैं, तालीम डिग्रीज मौजूद हैं लेकिन जॉब्स नहीं हैं, जॉब्स हैं तो सैलरीज काफ़ी कम हैं। तो इसमें जो नौजवान हैं, क्या वो भी मज़दूरों की, वो भी आज का मज़दूर है, वो भी इस 60% 80% में शामिल हो चुका है? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, हम समझते हैं कि आज पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं नौजवानों के दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे सब आवाम के बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ हम मसाइल डिस्कस करते रहें तो सारा दिन खड़े रहेंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि आज के दिन से हम क्या सबक हासिल करते हैं। शिकागो के मज़दूरों की जो शहादत थी वो इसलिए थी कि हम अपने मसाइल हल कर सकें, और आज भी पाकिस्तान के अंदर हम समझते हैं कि ये दिन जो है एक आगाज़ है, एक जंग का आगाज़ है इन हुक्मरानों के ख़िलाफ़, क्योंकि मुसलसल महंगाई होती चली जा रही है, लोगों की कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म होती चली जा रही है। वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान को हम श्रीलंका की तरह, सूडान की तरह, ईरान की तरह, और आज पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी इनकलाबी तहरीकें चल रही हैं उसकी तरह हम गिन रहे होंगे, जब यहाँ के वानों से हम यहाँ के हुक्मरानों को जो है निकाल बाहर फेंकेंगे, क्योंकि लोग बहुत गुस्से में हैं, लोग इनकी बोटियाँ तक चबा जाएंगे। जितना जुल्म, जितना सितम, जितना महंगाई इन्होंने हमारे साथ की है, यहाँ का नौजवान 60% आबादी का जो है हिस्सा है और वो बहुत गुस्से में है।
اور یہ ایک ایسا غصہ ہے جو ایک جنگل کی آگ کی طرح جو ہے بھڑکے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ، ان کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا، اور یہ دن دور نہیں ہے، یہ دن بہت قریب آنے والے ہیں۔ سرمایہ دار ہے وہ تو پیسے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، عام آدمی کو دینے کو تیار نہیں ہے، تو سرمایہ دارانہ نظام جو ہمارے یہاں موجود ہے، تو کیا لگتا ہے کہ جمہوریت بھی ہمارے ہاں، تو جمہوری اصولوں پر بھی کوئی عمل کرے گا؟ دیکھیں، ہم ایک بات پہ بہت قائل ہیں اور شروع سے سمجھتے آئے ہیں، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جب حق نہیں ملتا تو چھینا جاتا ہے، اور یہ حق جو ہے ہمارا اپنا ہے۔ یہ لوگ اگر ہمیں کچھ نہیں دیں گے تو ہم، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے مطالبہ کریں گے۔ مطالبہ وہ لوگ کرتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں۔ بھگت سنگھ نے کہا تھا کمزور اور طاقتور کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ طاقت میں، ہماری بہت بڑی طاقت ہے، عوامی طاقت ہے، اس کو صرف اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، اور جس دن ہم اکٹھے ہوئے تب ہم مانگیں گے نہیں، ہم چھینیں گے۔ جی، آپ بتائیے گا، آپ آج کے دن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشید دوستم ضلع رحیمر خان سے، اور میں اپنے کامریڈ کی بات کو آگے لے کے جاؤں گا۔ آپ توجہ فرمائیں، اب کیا ہوگا ملک کے لیے کہ یہ سرخ اکھی اتفاقی سوچا، یہ سرخ اکھی اتفاقی سوچا، جس رکھتے آگیا تدین کرے سن مزدور لوکیں دے بھٹکے لشکر ایوان پہنچ گئے تب بھوئیں ہلے سن۔ یہ روز محشر دی دیر کوئی نہیں، حشر تو پہلے حشر دکھے سن۔ یہ بکھے دکھے تے نیلے چہرے، یہ جو کچھ ہلے سن ان کو نبھے سن۔ وطن وطن دیا آزاد سوچا، وطن وطن دیا آزاد سوچا، یہ سرحدیں دے حساب گنسن، اور روٹی کپڑا مکان کتھے سوال ٹور پائے جواب گنسن۔ یہ لوگ اٹھ سن طوفان بن کے، یہ خواب چسن تعبیراں پوچھن، بن کے آدھے لے لوگ سارے کتھو آگے نے جگیراں پوچھن۔ اے دھرتی ساری دے تخت والو، یہ بھوئیں لگیاں لکیراں پوچھن۔ یہ ذات آدم تے باغی لشکر جو سرحدیں توے راہ کڈھے سن، یہ سچے جذبے دے نال اٹھ سن، دریا دے سیڑے تو باہ کڈھے سن۔ یہ سچے جذبے دے نال اٹھ سن، دریا دے سیڑے تو باہ کڈھے سن، دریا دے سیڑے تو باہ کڈھے سن۔ چلاک لومبر تے وانگ بھوئیں تے، تو جنگ بدل دی میں رنگ بدل دا، تو روز مطلب پرست بن کے، تو سنگ بدل دی میں رنگ بدل دا۔ میں دھرتی مادہ ہلالی پترا، لہو دے بدلے چمن بچیں دا، بارود سٹ کے وطن دی بھوئیں تے، تو بھائیں لیندی میں پھل رہیں دا۔ اے حق دے بدلے سماج سارے، اے حق دے بدلے سماج سارے، سڑک تے حسن تو فوجانی، کسان میرے مزدور میرے، اگوے حسن تو فوجانی، کسان دھرتی چمن بچے سی، کسان پھلیں دا ایک پتنگے، پتنگ کو زندگی دی نہیں ضرورت، جو درد داہی دا فکر کوئی نہیں وہ سرخ سویرے دی سوچ رکھ دے، جو درد داہی دا فکر کوئی نہیں جنہاں کو راہ دے سفر دا چنتا، وہ پالی راہ وچ قیام گھن دے، منہ زور گھوڑا سوار کولو ایویں دی ٹرتا لگام گھن دے، تے جڑا ہی منزل تے پہنچ ویندا ہے سفر کرن دا انعام گھن دے۔ انعام کیا ہے منصور بھر گئے، انعام کیا ہے منصور بھر گئے، انعام کیا ہے سرات بن گئے، یہ جیت بازی انعام مل سی، لڑائی دا دوستم حالات بن گئے، لڑائی دا دوستم۔ کیا بات جی، آپ نے شاعری سنی جو عام مزدور، عام ورکرز کی زبانی، انہوں نے پوری حالات کا احاطہ کیا کہ کس طرح سے ہمارا عام آدمی متاثر ہے۔ اچھا، آپ کیا آخر میں مختصر پیغام دینا چاہیں گے؟ محمد اکرم نوری، پاور لوم لیبر یونین کے پریزیڈنٹ ہمارے تو کافی پریشان ہے آج کل۔ ہاں جی، تو ان کا تو ڈبل استدلال ہو رہا ہے، ایک تو مالک ان کو مزدوری کم دے رہا ہے انتہائی، دوسرا جو حکومت ہے وہ بھی دورہ معیار ہے کہ مہنگائی اس قدر بڑھ رہی ہے، روز بروز بڑھ رہی ہے، اور لوگ جو ہیں فاقوں سے مر رہے ہیں، غربت سے مر رہے ہیں۔ تو یہ یکم مئی کا منانے کا مقصد یہ ہے، یقین کریں تمام طبقہ جو یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے پاور لوم کا، وہ آج سارے کام کرنے پر مجبور ہیں۔ چھٹی صرف ان کو ہے جو سرکاری افسران بالا ہیں، سرکاری افسران بالا ہیں، جو لوگ کام کریں ان کو جو ویجز ملتے ہیں وہ انتہائی کم ہے۔ یہ آپ نے گفتگو جانی، ہم مزید بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں یکم مئی کے حوالے سے، عالمی یوم مزدور آج دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے۔ جو شکاگو کے مزدور تھے 1886 میں، جنہوں نے رائٹس کے لیے، لیبر لاز کے لیے احتجاج کی تھے، جس پر ان پر فائرنگ کی گئی اور سینکڑوں مزدور جان کی بازی ہار گئے تھے، تو ان مزدوروں کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر سال یکم مئی منایا جاتا ہے۔ تو ملتان میں بھی جو مختلف ٹریڈر یونینز ہیں، لیبر یونینز ہیں، لیبر ونگز ہیں سیاسی جماعتوں کے، وہ آج پریس کلب کے باہر موجود ہیں۔ ہم نے پہلے بھی گفتگو کی کہ جس طرح سے
से लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। हमारे यहाँ जो लेबर राइट्स हैं उसके हवाले से कितना अमल दरामद होता है। रक्षा यूनियंस और लेबर यूनियंस अब प्रेस क्लब के बाहर पहुंची हैं, जरा हम उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से कहा जाए कि दुनिया के मेहनत कशो एक हो जाओ। आज यकजहती और तजदीद का दिन मनाया जा रहा है, एक मजदूर को बेदार किया जा रहा है कि उसके राइट्स क्या हैं, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, सरमायादाराना निज़ाम में उसका किस तरह से इस्तेसाल किया जा रहा है। हुकूमतें बनती हैं, वो मजदूरों को कुछ रिलीफ देने को तैयार नहीं रहती है और मजदूर ज़िंदगी सारी उम्र मेहनत कर करके कब्र में चला जाता है, लेकिन उसे उसकी जो काम करने का सिला नहीं मिलता। हम इस पर बात करेंगे। अच्छा, आज आलमी यौम मजदूर है, हमारे यहाँ मुख्तलिफ रिलीज भी हो रही हैं, अभी भी सियासी जमातों के विंग्स भी आ रहे हैं, रक्षा यूनियंस भी आ रही हैं, ट्रेडर्स यूनियन भी आ रही हैं। लेकिन मजदूर की बात करें तो 65-75 साल से मजदूर का हमेशा से इस्तेसाल होता जा रहा है और अब तो हमारी जो 60% आबादी है नौजवानों की, वो भी मजदूर ही हम उनको कह सकते हैं, क्योंकि जितने उनको वेजेस मिलते हैं वो उतने ही होते हैं। तो क्या समझते हैं कि क्या कहीं पर कोई आम आदमी के बारे में, आम मजदूर के बारे में भी सोचा जा रहा है कि उसके लिए भी कुछ किया जाए? जी बिल्कुल नहीं। जैसा कि आपको मालूम है 1886 में शिकागो के शोधा ने इस अजीम दिन के लिए, यकम मई के लिए, मजदूरों के हकूक़ के लिए, उसके इस्तेसाल के ख़ात्मे के लिए जद्दोजहद की थी और अपनी जानों का नजराना पेश किया था। आज फिर वही वक्त आ चुका है, जब तक मजदूर खुद कदम नहीं बढ़ाएगा, आगे नहीं निकलेगा, अपने हकूक़ के लिए नहीं आवाज़ बुलंद करेगा, तो तब तक ये हुकूमत कुछ नहीं करेगी। हालांकि वाज़े तौर पर लेबर कवानीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हमारे कोई भी हुकूमत इम्प्लीमेंट नहीं करती लेबर लॉस पर। लेबर डिपार्टमेंट मौजूद है, लेकिन वो ना होने के बराबर है। किसी फैक्ट्री का चेक एंड बैलेंस नहीं है, कहीं पर कोई वेजेस नहीं है, हर हुकूमत में ऐसा रहा है। तो इस रवैये को बदलना कितना लाजमी है? देखें जी, ILO का एक प्लेटफार्म है इंटरनेशनल, जब तक ये तंजीमें वहाँ आवाज़ बुलंद नहीं करेंगी, वहाँ अपनी आवाज़ नहीं पहुँचाएंगी, उस तक अमल दरामद नहीं होगा। दूसरी बात यह कि आजकल जो महंगाई है हुकूमत ने की है, इस हुकूमत ने की है, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो कम अज़ कम, जैसे पहले यूनियंस एक ऐलान किया करते थे कि पाकिस्तान के अंदर मजदूर की जो उजरत है वो कम अज़ कम 1 तोला सोने के बराबर होनी चाहिए। अब तो सोना बहुत आगे हो गया, लेकिन कम अज़ कम ये 40-50 हज़ार पे जो मजदूर को मिल रहे हैं वो इसमें पूरा नहीं कर सकता। आप बिस्किट फैक्ट्री में चले जाएँ, लेबर जितनी भी फैक्ट्री हैं, स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में चले जाएँ, उनको जो उजरत दी जाती है उसके ऊपर सारी चेक एंड बैलेंस जो है वो लेबर कवानीन पे, लेबर इंस्पेक्टरों की है। जब तक वो फाल नहीं होंगे, मैं समझता हूँ कि मजदूर को जो है, आज भी वापडा का मजदूर इस जदीद दौर के ऊपर खंबे के ऊपर चढ़ा हुआ है। आज भी इस जदीद दौर के अंदर वासा का मजदूर जो है वो गटर लाइन में अंदर घुस के सांस को रोक कर, कई अमवात होती हैं, कई लोग ड्यूटी के दौरान शहीद होते हैं, लेकिन वो मजबूर है। हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे यहाँ लेबर लॉस पर अमल नहीं होता। हमारा मजदूर सीवरमैन जो है वो गटर लाइन में जाता है, वहाँ गैस है, जो भी है वो उसको फेस करता है। हमारा जो लाइनमैन है वो खंबे पे जाता है। हमारा जो लक्कर मंडी में काम करने वाला मजदूर है वो 1 मन लकड़ी 8 रुपए में उठा रहा है, तो अंदाज़ा लगा लें कि हम कितना ज़्यादा इस्तेसाल करते हैं आम आदमी का। अच्छा, आप बताइएगा, हमारे यहाँ चाहे वो मंडियाँ हैं, गला मंडी है, लक्कर मंडी है, उसका रेलवे है, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनको वेजेस भी नहीं मिलते। लक्कर मंडी में जाएँ तो 8 रुपए पर मन के हिसाब से मिलता है। अगर गला मंडी में जाएँ तो वो बोरी 12 रुपए 15 रुपए मन के हिसाब से उठाता है। अगर आप सब्जी मंडी में जाएँ तो वो पूरा टोकरा 20 रुपए में भी नहीं उठा रहा, पूरा चक्का लगाता है। तो हमारे यहाँ जिस तरह आम मजदूर का इस्तेसाल होता है, तो ये माशरा पे किस तरफ जाएगा? हर बंदे फिर नफ्सी का आलम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मजदूर डे मना रहे हैं आज, मगर देखे जाके कि तमाम मजदूर इस समय काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर कोई किसी तरह का भी सेटिंग नहीं है। अब देखिए, आप जाके एक आदमी के घर का चूल्हा, बिजली का बिल वगैरह और राशन वगैरह कितना खर्चा आता है, वो 50,000 से ऊपर है। वो जो 15,000, 12,000, 20,000 से ज़्यादा नहीं है। तो पता है गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हुकूमतें आपस में लड़ रही हैं, गरीब का कोई नहीं सोच रहा। गरीब का कोई नहीं सोच रहा, हुकूमती सतह पर कोई डिस्कशन नहीं है। आप बताइएगा जी, जो सूरत हाल है, आप नौजवान हैं, नौजवान क्या सोचता है? सुबह शाम जॉब की तलाश है, सुबह शाम काम की तलाश है, घर चलाना है, घर की जिम्मेदारी लेनी है, लेकिन नौजवान तो आज ज़्यादा डिप्रेशन में। बिल्कुल इसी तरह है। अब देखें, हम यकम मई हम मना रहे हैं, लेकिन हम ये मनाते रहते हैं, होता कुछ नहीं है। हुकूमतें आपस में झगड़ रही हैं और कुछ हो नहीं पा रहा। आप देख लें, मजदूर से 18 घंटे ड्यूटी ली जाती है, हालांकि 8 घंटे है उनकी ड्यूटी होना लाजमी है, तो वो ड्यूटी ले लेते हैं इतना ज़्यादा, अजरत जो है उनकी इतनी नहीं है। अब देख लें, 50,000 एक घर का अगर है सिस्टम, तो किराए का मकान है, बिजली का बिल है। अब आप खुद देख लें, सुई गैस का इन्होंने मीटर का किराया 500 रुपये कर दिया है, तो आप खुद देखें मजदूर कहाँ जाए?
तो देखिए मजदूरों के लिए हम हक और आवाज़ बुलंद करेंगे, हक की आवाज़, तो कुछ जाके फिर बनेगा। इस तरह तो फिर हम ये हर यकम मई को इस तरह एहतजाज करते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। मजदूरों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और जो हमारे मजदूर हैं उनके असर जो मसाइल हैं उनके हवाले से भी डिस्कशन होनी चाहिए, हुकूमती सतह पर भी और हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन पर तो सुबह शाम डिस्कशन होती है, लेकिन जो हमारा आम आदमी है उसके क्या मसाइल हैं, वो किस तरह से फेस करे, उस पर बातचीत का होना काफ़ी लाजमी है। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले हुकूमती इरकान जो हैं, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, शुगर मिल्स हैं, दीगर हैं, वो लेबर कवानीन को जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें ताकि वहाँ से रवायत चले और दूसरों के ऊपर भी लागू करवाया जा सके। हुक्मरान तबके को, उसके अलावा उन इदारों को भी रोल अदा करना होगा जिनका इस मुल्क में काफ़ी बड़ा सेटअप है, वो चाहे वो प्रॉपर्टी के हवाले से हो, चाहे वो सरमायादारी के हवाले से हो, चाहे उसके साथ साथ टेक्सटाइल है, शुगर इंडस्ट्री है, तो उनको भी इस हवाले से अपना रोल अदा करना होगा, क्योंकि प्रॉफिट हमारे यहाँ बदकिस्मती से स्टॉक के जरिए कमाया जाता है, उसकी मद में मजदूर को कुछ नहीं दिया जाता। अच्छा, आप क्या आज के दिन के हवाले से कहना चाहें? सर जी, बात यह है कि आज सिर्फ बात होगी मजदूरों के दिनों पे, भूल जाएंगे लोग बिस्कुट फैक्ट्री, निम्को फैक्ट्रियाँ, जितने छोटे छोटे कारखाने हैं, निजी फैक्ट्रियाँ, 15,000, 20,000, 18,000 रुपये तनख्वाह है लोगों की, 600 रुपये किलो घी है, 150 रुपये किलो आटा है, गरीब आदमी मर गया, हुकूमत कुछ नहीं कर रही, गैस बिजली कारखाने बंद हो रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि मजदूरों के लिए कुछ अमली इक़दाम करे और कोई खुदारा कुछ करे। मजदूर मर गया बेचारा, आज भी लोग मजदूर काम कर रहे हैं, सरकारी अफसर मजे कर रहे हैं, एसी रूमों में घर में बैठे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, मजदूर आज भी सड़कों पे रेडी छब्बे रक्शे चल रहे हैं। सूरत हाल है। अच्छा, आप बताइएगा, आप वैसे करते क्या हैं और जो उस वक्त मौजूदा हालात हैं आम आदमी के, वो कितना परेशान है? मेरा नाम फ़खरुल इस्लाम भुट्टा है, मैं इंजीनियर हूँ पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड से, सुई गैस फील्ड से। मैं वहाँ पर तकरीबन 33 साल सर्विस करके आया हूँ। तो मकसद ये है कि ये जो हम यकम मई का रोज़ मना रहे हैं, ये मज़दूरों के हक़ में जनाब यानी मतलब आवाज़ उठाई है। तो असल में बात ये है कि मज़दूरों का जो है ना उजरत ये ज़्यादा बढ़ाना चाहिए महंगाई के लिहाज से। नंबर 2, इनके लिए मौक़े फराहम किए जाएँ, इंडस्ट्री को चालू किया जाए ताकि मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर काम करें और अपनी उजरत वसूल करें। और ड्यूटी जो है वो 8 घंटे ही होनी चाहिए। ये 18 घंटे 12 घंटे करते हैं, लेकिन उजरत 8 घंटे की देते हैं। और एक्स्ट्रा सबसे ज़्यादा जो है वो मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, इलाज उनका फ्री होना चाहिए। अच्छा, आज का जो है ये बिजली का मीटर जो है, ये इसका जो हम जो नोटिस भरते हैं, इसका किराया मीटर की कीमत अदा कर देते हैं, ये हर महीने किराया वसूल करते हैं, ये भी ज़्यादती है। और सुई गैस का मीटर है वो भी हमने पे किया हुआ है, उसके भी वो रेंट, ये तो बिल्कुल गलत सारे मसाइल हैं और आम आदमी से ये चीज़ें वसूल की जाती हैं। हमारी हुकूमत 800 रुपये कमाने वाले से भी रोज़ाना 200 रुपये इजाफी वसूल करती है टैक्स की मद में, चाहे वो भी जो कुछ है। अच्छा, आप बताइएगा, आम आदमी इस वक्त क्या क्या चीज़ें फेस कर रहा है? सबसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे बड़ी बात है कि इस मुल्क में जितनी महंगाई है, जो महंगाई का तूफान आया हुआ है, उसमें तो गरीब आदमी ही पिसा है। उसमें ग्रेड 1 से लेकर 8 तक ये मिडिल क्लास होता है। इस मिडिल क्लास के लिए इतनी तकलीफ़ें पैदा हो चुकी हैं, आप सोच भी नहीं सकते। खुदारा हुकूमत से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेहरबानी कर कुछ ना कुछ ख्याल करें। हुकूमत से मुतालबा किया जाए। आप बताइएगा, आम आदमी के लिए हमारी सियासी जमातें कितनी आवाज़ उठानी चाहिए उनको? आम मजदूर जो इस वक्त हालात फेस कर रहा है, जिस तरह से डॉलर का रेट बढ़ा है और चीज़ों के रेट में इजाफा हो गया है, मजदूरी वहीं पर मौजूद है, तो आम आदमी 2-4 किन मुश्किलात से? देखिए, मैं समझता हूँ इस वक्त ना पाकिस्तान में जो मजदूर है वो बेयार और मददगार है, कोई पूछने वाला नहीं है, ये एक हकीकत बात है। और जो भी टैक्स लग रहा है, जो भी कोई मुश्किल आ रही है, वो गरीब पर आ रही है, मजदूर पर आ रही है। अभी एक बर्निंग इशू है, मैं आपके मीडिया के तवज्जुह से रहम की इन पे अपील करता हूँ इस हुकूमत से कि मेहरबानी करें। अभी ने रिसेंटली एक टैक्स लगा दिया है, मीटर का किराया, सुई गैस का जो बिल है, जो हमारा बिल 200-300 आता था, अब उस पर फीस रख दिया 500 रुपया, तो सिर्फ मीटर का किराया रख दिया है, बिल उसके बाद है। ये कोई तरीका है? ये कोई बात है? मजदूर को ये किस तरीके से मारना चाहते हैं या मुल्क बदर कराना चाहते हैं? ना हम मरने के काबिल हैं, ना हम मुल्क छोड़ सकते हैं। हम करें तो करें क्या? हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, हमें कोई सुनने वाला नहीं है। हम चीखो पुकार जो हमारी है इन ऐवानों तक जाती तो है, लेकिन वो मेरे ख्याल में मजदूर को तो इंसान ही नहीं समझ रहे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ही हमारी आवाज़
हुकाम बाला तक पहुँचाएँ कि वो खुदारा हमारे पे मजदूरों पर रहम करें। मेहरबानी आप रहम के जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू की, और आज जो यकम मई का दिन है वो आज इसलिए भी कुछ मुख्तलिफ है क्योंकि पहले जिस तरह से हमारे यहाँ हालात थे मुल्क के, हमारे यहाँ जो मईशत थी वो अब मुख्तलिफ हो चुकी है। अब हमारे यहाँ तकरीबन 80% क्लास जो है वो अब मिडिल क्लास से भी नीचे आ चुकी है, लोअर मिडिल क्लास, उसके बाद लोअर क्लास। तो उनके जो वेजेस हैं वो इंतहाई कम हैं। आम आदमी कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम का सामना है। सरकारी जॉब्स की जो तनख्वाहें हैं वहाँ भी वो भी कम है। तो हमारे यहाँ जो अगर महीने की इनकम की बात करें तो वो $145 से भी कम है। हमारे यहाँ जो आम आदमी है वो तकरीबन महीने के $100 के करीब कमा रहा है महीने के। अगर 30 दिन के एक दिन के हिसाब करें तो मुश्किल से $3.5 बनते हैं। अगर एक घंटे की बात करें तो वो $0.3 या $0.4 एक घंटे का कमा रहा है हमारा मजदूर। तो अंदाज़ा लगा लें कितनी मुश्किल में हमारा आम आदमी काम करता है, उसको वेजेस क्या मिलते हैं। और हुकूमत और जो स्टेट है वो जो उन्होंने आइन में चीज़ें लिख के दी हैं तो वो उस पर अमल दरामद कहीं भी होता हुआ दिखाई नहीं देता। आज भी यकम मई का दिन तो ख़त्म हो रहा है। अब देखते हैं कि इस दिन के इख्तिताम के बाद क्या हमारी हुकूमतें इस बात पर तवज्जो देती हैं कि उन्हें मजदूरों को राइट्स देने चाहिए या फिर ये सिलसिला चलता रहेगा ऐसे ही। तो आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।